نہیں نہیں ابو، ایسا مت کریں، مت جائیں ابو، میں نہیں ہوں ویسی۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کے پاؤں پکڑے تھے۔ میں مر جاؤں گی ابو، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، آپ تو میرے ابو ہیں نا، پلیز مجھ پر ظلم نہ کریں، میں آپ کی آنکھوں میں بے یقینی نہیں دیکھ سکتی۔ سامنے کھڑے شخص نے بےحسی سے اس کے ہاتھ اپنے پیروں پر سے جھٹکے۔ تم بھی اپنی ماں اور بہن جیسی بد کردار ہو، اسی لیے تم یہاں رہو گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ بھاری آواز میں بولی، نہیں ابو، ایسا نہیں کریں، آپ کو اپنی بیٹی پر ترس نہیں آتا؟ سامنے کھڑے شخص کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ نہیں مانتا میں تمہیں اپنی بیٹی، سمجھی تم؟ نہیں ہوں میں تمہارا باپ۔ وہ اپنی جگہ شل کھڑی تھی جب دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی۔ ابو کھولیں، مجھے جانے دے یہاں سے۔ وہ گھنٹہ بھر چیختی رہی، پھر زمین پر بیٹھ گئی۔ گلا خشک ہوا تھا، آواز بھاری ہو رہی تھی، مگر اب بھی ایک آس تھی۔ وہ پھر سے دروازے کے پاس آئی۔ داجی، کہاں ہیں آپ داجی؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، آپ تو جانتے ہیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے لے جائیں۔ ایک دفعہ پھر سے اس کی آہو پکار رد ہوئی تھی، آج پھر وہ اس جگہ آ کر قید ہوئی تھی جہاں آتے اچھے اچھوں کی روح فنا ہوتی تھی۔ وہاں کب کس کو موت آ جائے کسی کو خبر نہیں تھی، بس یہ پتا تھا ایک مجرم اپنے جرم کی سزا کاٹنے گیا تھا، اور اگر موت آ جائے تو یہ اس کی قسمت تھی۔ ہر لمحہ خوف کے ساتھ، اس جسم چیرتی ٹھنڈ کے ساتھ وہ یہاں بغیر کسی جرم کے آئی تھی، اور کتنی بار آنا تھا اس بات سے وہ بے خبر اپنی ناقدری پر آنسو بہا رہی تھی۔ یہ منظر لال حویلی کا تھا، جہاں کے رہنے والے لوگ بظاہر تو سادہ سے تھے، مگر وہاں کا ہر شخص خود کو حاکم مانتا تھا۔ وہ لال حویلی کے نام سے کم اور ظالم کی بستی سے زیادہ جانی جاتی تھی۔ وہاں جاگیردار سید سفیان شاہ کی حکومت چلتی تھی۔ جہاں تک سانسیں چلتی تھیں تب تک ظلم چلتا تھا، جہاں سانس کی ڈوری ٹوٹی وہاں سفیان شاہ کا حکم بجا لایا جاتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ ایک شخص سفیان شاہ کے پیروں میں گر گرا رہا تھا، مالک بچہ ہے وہ، معاف کر دیں اسے، چاہے تو مجھے اس کی جگہ موت دے دیں پر اسے بخش دیں۔ سفیان شاہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ اس کا ایک اشارہ ملا اور رسی کو کھینچ دیا گیا، اور وہ شخص جو صبح 4 بجے سے کوڑے کھا رہا تھا، اس پر رحم کھا کر موت بخش دی گئی۔ اس کی ماں جو منتیں مانگ رہی تھی، چیختی اس کے پاس پہنچی، میرا بچہ، خدا تیرا بیڑا غرق کرے جاگیردار، خدا کرے تجھے ایسی موت آئے کہ تو موت کو ترسے اور موت تیرے آگے آگے بھاگے، تو روئے گا اور کوئی تیری سننے والا نہیں ہوگا، یہ ایک ماں کی بد دعا ہے۔ سفیان ایک زوردار قہقہ لگا کر ڈیرے سے حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی حویلی میں ہزاروں ملازم کام کرتے تھے، جس میں سے ایک وہ بھی تھی۔ چہرے پر ریشمی دوپٹے کا پلو نکالے وہ پانی کا گلاس لیے اس تک پہنچی تھی۔ وہ لاکھ برا سہی پر عورتوں کی عزت کرنا بخوبی جانتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، خود کو پرسکون کرنے کے لیے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، تبھی دستک ہوئی۔ سفیان نے آنے والے شخص کو دیکھا، کہنے کو وہ جاگیردار تھا پر ایک وہی تھی جس کے پائل کی چھنک سفیان کو پلٹنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ سامنے وہ پیلے اور گلابی لہنگے چولی میں ملبوس ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ سفیان کی نظر خود بخود جھکی، نظر اس کے 2 دہیا پیروں پر گئی جس میں پازیب خوب جچ رہی تھی۔ وہ ذرا سا پلو اٹھاتی بولی، پانی؟ سفیان سخت لہجے میں بولا، کتنی دفعہ منع کیا ہے میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ وہ منمنائی، کچن میں کوئی نہیں تھا اسی لیے میں خود لے آئی۔ وہ دھاڑا، کیوں، کہاں مر گئے ہیں سارے؟ وہ بے حد آہستہ آواز میں بولی، جی وہ بھائی ڈیرے پر وہ لڑکا، اس کی لاش، وہ کپکپانے لگی تھی۔ اسے کپکپاتا دیکھ کر وہ نرمی سے بولا، رکھ دو اور جاؤ۔ اس نے پوچھا، جی کچھ اور چاہیے؟ سفیان نے یک لفظی جواب دیا، نہیں۔ وہ اس کے جواب پر پلٹی لیکن نظر بھر کر اسے دیکھنا نہیں بھولی۔ سفیان شاہ نے سر جھٹکا۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں آئی۔ حسنہ بھی بولی، یوں دوڑی دوڑی کیوں آ رہی ہو، بابلی ہو گئی ہو لڑکی؟ وہ خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے بولی، حسنہ بھی میں نے انہیں دیکھا۔ حسنہ بھی اپنا سر تھامتی بولی، اینا میرے بچے تم اسے روز دیکھتی ہو؟ ان کے یاد کرانے پر وہ خوشی سے بولی، پر حسنہ بھی وہ آج کچھ زیادہ ہی پیارے لگ رہے تھے۔ وہ مرچیں کہاں گئی، مجھے ان کی نظر اتارنی ہے۔ حسنہ بھی نے اس کی کلائی تھامی، تم اس حویلی کی ملازمہ ہو اور شاہ جی اس حویلی کے اکلوتے وارث، تم کیوں بھول جاتی ہو یہ حویلی والے کبھی بھی تمہارا خواب پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اینا کی خوشیوں پر تاریکی چھا گئی۔ وہ بھاری آواز میں
बोली, हाँ मैं हूँ एक मुलाजमा, बिन माँ बाप की लड़की, पर मेरे पास एक दिल भी है जो हसब नसब नहीं देखता, इसको तो सिर्फ शादी चाहिए। 2 आंसू टूट कर जमीन पर गिरे। हुस्ना भी बोली, तुम्हें समझाना ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, मगर एक बात याद रखना कि वो किसी और की अमानत है। वो चाय लेकर किचन से निकल गई। गहरी सोच में डूबे इसने बोला, वो सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। झुर्रियों से भरे चेहरे और सफेद बालों वाली औरत ने पूछा, उठ गई आप? मुकाबिल ने अपना चेहरा मोड़ लिया। इन्होंने फिर पूछा, नाराज हैं आप? इसने सर्द लहजे में पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया था? इन्होंने तहम्मुल से जवाब दिया, सुफियान। वो चीखी, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मुझ जैसी बेहया को क्यों कैद से रिहाई दी? जब मेरी कब्र खोद चुके हैं तो ये हमदर्दी किस बात की? वो खामोशी से सुनती रही। वाकिफ थी, वो इनसे सवाल करती, इन्हीं से लड़ती और फिर इन्हीं की पनाहों में छुप जाती। वो हिचकियां लेते हुए बोली, बीजान। इन्होंने इसे अपनी आगोश में लिया। इशाल, मेरे बच्चे, रो मत मेरी जान। वो रोते हुए बोली, रो नहीं तो और क्या करूं बीजान? अब्बू मुझ पर भरोसा नहीं करते। बीजान इशाल को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। वो करता है तुम पर भरोसा, बस अभी गुस्से में है। इसकी सांस अटकने लगी। वो नहीं करते। कल रात इन्होंने खुद कहा कि मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते। वो बीजान को जिस चीज का खदशा था वही हुआ। इशाल, इनकी चीख इस कमरे में गूंजी। ये कहानी है एक जालिम हुक्मरान की जिसकी नजर एक चेहरे पर झुकती थी, एक यतीम लड़की की जो एक पत्थर को दिल दे बैठी, एक पुरस्रार लड़की की जो बिना किसी जुर्म के सजा काट रही थी। इस हवेली में बसने वाले लोगों के सरपरस्त सैयद सुभान शाह और इनकी बेगम मलका सुभान शाह हैं, जिनकी 2 औलादें हैं। पहला बेटा सैयद वलीद शाह, जिन्होंने 2 बार शादी की। पहली बीवी जरमीना वलीद शाह, जिनसे इनका बेटा सुफियान शाह हुआ, और वो सुफियान को 4 साल की उम्र में छोड़कर दुनिया से चली गईं। सुफियान शाह की देखभाल के लिए दादी ने वलीद शाह की दूसरी शादी करा दी, आमना बलोच, जो कि शादी के बाद आमना वलीद शाह बन गईं। इससे वलीद शाह की 2 जुड़वा बेटियां हुईं। दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। ईशा वलीद शाह जो गुस्से में अपने बाप की कॉपी थी। अलमुख्तसर, वो बिगड़ी, नकचड़ी और बदतमीज लड़की थी। इसके मुकाबले में इशाल शाह सुगड़, समझदार और मासूमियत की मूरत थी। लाल हवेली की जान इस छोटी परी में थी। सुफियान की वो सुतीली बहनें थी, लेकिन हमेशा इन्हें बाप से बढ़कर प्यार दिया था। लेकिन आजमाइशें कहाँ खत्म होनी थीं। आमना शाह की वफात और इस रात के हादसे ने लाल हवेली के लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली थी। इस हादसे के बाद वलीद शाह बिखर कर रह गए थे और बदले की आग ने इनको बदल कर रख दिया कि वो अपनी सगी सुतीली हर औलाद को भूल गए। दादी ने सुफियान शाह से पूछा, वो कब तक आएगा? सब इस वक्त खाने की टेबल पर मौजूद थे। सुफियान ने जवाब दिया, मेरी इससे बात हुई है, कह रहा है अगले हफ्ते आएगा। वलीद शाह ने इसे मुहातिब किया, जिस पर सुफियान ने सवालिया नजरों से इनकी तरफ देखा। वो यहाँ क्यों आ रहा है? सुफियान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, आपको बेहतर तरीके से पता है। वो बोले, मगर मैं ऐसा कुछ। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करते कि सुफियान की आवाज गूंजी, हुस्ना भी भागती हुई आई। जी सुफियान बाबा। सुफियान ने बाअदब तरीके से पूछा, भी इशाल कहाँ है? इसे नहीं पता ये खाने का वक्त है? हुस्ना भी बोली, वो बस आ रही है, ले आ गई। इशाल ने सुफियान को सलाम किया। दादी ने इशाल से पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी? इसके लहजे में नाराजगी की रमक थी। ठीक हूँ। दादी बेबस थे। चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह। इसके बाद हवेली के मकीनों में कोई बात नहीं हुई। अगर कहा जाता लाल हवेली के लोग गूंगे हैं तो गलत ना था। सुफियान अभी डेरे की तरफ जा रहा था जब वलीद शाह ने इसे रोका। वो लड़का यहाँ नहीं आना चाहिए। वो इनकी बात को नजरअंदाज करता हुस्ना बी से मुहातिब हुआ। हाँ, मैं बताना भूल गया, कल अरशान शाह आ रहा है तो इसका कमरा साफ कर दीजिएगा और खाना इसकी पसंद का बनना चाहिए। इसके हुक्म पर वलीद शाह को आग लग गई थी। सुफियान एक बार फिर बोला, वो मेरी महरूम फुप्पो का बेटा है। मैं इनकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, बेशक वो इस दुनिया में ना हो। जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। दूसरी ख्वाहिश इनकी अभी नहीं पूरी कर सकता, लेकिन वादा है जल्द
ज़रूरत पूरी करूँगा। आखिरी जुमला इसने ऐना की तरफ देखकर कहा था। वलीद और इशार के साथ साथ ऐना पर भी सख्ता तारी हो गया था। ऐना तो अपनी जगह ही खड़ी रह गई। वो लड़की बोली, हाँ बाबा, बस मैं पहुंच रही हूँ। इसने मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करते कहा, ये तो होटल का एड्रेस है, हम कॉफी शॉप पर भी तो मिल सकते हैं। इसे मुकाबिल का आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया था। आ रही हूँ। इसने कॉल काट कर ड्राइवर से पूछा, कितने पैसे? वो बोला, मैम 3000। इसने 5000 का नोट पकड़ाया तो सामने वाला बोला, मैम मेरे पास चेंज नहीं है, वो जिद हुई थी, रख लो। वो ऐसी ही थी, लापरवाह बला की हसीन। इसका फोन रिंग हुआ जो कि अननोन नंबर शो कर रहा था। फिर से नहीं, इसने कहते कार साइड पर रोकी। पिछले 3 साल से इसे अननोन नंबर से कॉल आती थी। वो अब तक 6 सिम्स बदल चुकी थी, मगर मुकाबिल इंतहा का ढीठ था। कोई दिन इन 3 सालों में ऐसा न था जिसमें इसकी कॉल न आई हो। वो चाहती तो कॉल मुस्तरद कर सकती थी, मगर कॉल ना उठाने की सूरत में इसे सजा मिलती थी। वो जो कोई भी था, वरीशा सुल्तान की जान का अजाब बन गया था। ऐसा अजाब जिससे ना वो जान छुड़ा पाती थी और ना इसे जान पाती थी। वो 3 साल से इसे कॉल कर रहा था, मगर वरीशा इसकी आवाज के अलावा कुछ ना जान पाई थी। वो हर बार अलग नंबर से कॉल करता और अगर पिछले नंबर पर कॉल करो तो बताया जाता कि वो नंबर बंद हो चुका है। वो कोई आम लड़की नहीं थी और ना ही डरपोक थी। वो सुल्तान अहमद मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ इस्लामाबाद की मालिक की इकलौती बेटी थी। इसने हर हरबा आजमाया, मगर वो शख्स इसको जोंक की तरह चिमट गया था। सुल्तान साहब ने कई बार इसकी मदद करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा टाल देती, क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि वो ना इसे नुकसान पहुंचाएगा और ना किसी को पहुंचाने देगा। बस इसे छोटी मोटी सजाएं देता था डराने के लिए। वो सोचों से बाहर आई। जहां अब चौथी कॉल आ रही थी, इसने हड़बड़ाते कॉल उठाई, मगर जो खबर इसे मिली इसने वरीशा के होश उड़ा दिए। वो अंधाधुंध ड्राइव करते सुल्तान पैलेस की तरफ रवाना हुई थी। इसकी माँ ने पूछा, कैसा रहा आज का दिन? वो बोला, अच्छा था। इसने तहम्मुल से जवाब दिया था। खाना लगा दूं? इसने कहा, जी। मुकाबिल ने पूछा, जॉब मिली? सामने खामोशी थी। तभी इसकी माँ बोली, खैर है, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, मैं खाना लगा रही हूँ, आके खा लो। हुक्म की बजावरी करते वो फ्रेश होने चला गया। गाड़ी को गेट पर छोड़ते वो तेजी से अंदर की तरफ भागी। डैड, कहाँ हैं आप? डैड, वो मुसलसल इन्हें पुकार रही थी। वो मीटिंग छोड़ते इसकी तरफ आए। यस माय लव, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो परेशानी से इन्हें छूते कहने लगी, डैड आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? इन्होंने वरीशा के हाथ थामे। रिलैक्स, काम डाउन। वो इन्हें देखने के बावजूद भी परेशान थी। डैड, इन्होंने इसे रिलैक्स करने की कोशिश की। रिलैक्स, ये लें पानी पिए। अहमद साहब ने वरीशा के बाल से लाई और पूछा, अब बताएं क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान है? वो इन्हें सारी बात बताने लगी। डैड, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी तो मुझे अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे लगा ये वही है, पर वो कोई और था। इसने मुझे कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। मैं आपके ऑफिस गई तो आप वहाँ नहीं थे। मैंने आपको इतनी कॉल्स की पर आपने एक भी कॉल नहीं उठाई। फिर गार्ड ने मुझे बताया कि आप पैलेस में हैं तो मैं फौरन इधर आई, मगर आप तो। वो बोलते हुए चुप हुई। वो अपने सामने इन्हें ठीक ठाक देखकर हैरान थी। वो हंसे। डैड हंसे तो नहीं, आपको पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। इन्होंने वरीशा को अपनी बाहों में लिया। माय प्रिंसेस, आपके डैड बिल्कुल ठीक हैं। इसकी आंखों में नमी आई। मुझे लगा डैड वो सच कह रहा है। इसकी आंखों में नमी देखते वो बोले, मेरी बेटी तो ब्रेव है ना, रोना नहीं। डैड सॉरी करते हैं, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। वरीशा ने इनके कानों की तरफ जाते हाथ पकड़े। डैड आप क्यों सॉरी कर रहे हैं? शायद किसी ने प्रैंक कॉल की होगी। वो बोले, हाँ शायद। चलें आप फ्रेश हों, मैं भी मीटिंग खत्म करके आता हूँ। वो मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। वो इसे देख ही रहे थे जब इनका मोबाइल रिंग हुआ। हाँ, वो पहुंच गई है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। इन्होंने ये कहकर कॉल काट दी। वरीशा वॉशरूम से निकलती भाग के मोबाइल के पास पहुंची जो आधे घंटे से बज रहा था। क्या मुसीबत है? कौन मरा जा रहा है? मुकाबिल शोख लहजे में बोला, अभी सांसें चल रही हैं, जब लगेगा तुम्हारे बहर मर जाऊंगा तो बता दूंगा कि मरा जा रहा हूँ। वरीशा चीखते हुए बोली, तुम? मुकाबिल का लहजा सख्त हुआ। मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाली लड़कियां नहीं पसंद।
वरीशा तल्ख लहजे में बोली, मुझे तुम्हारी पसंद बनने का कोई शौक भी नहीं है, समझे तुम। वो भी इसी के अंदाज में बोला, मेरी पसंद बनना इतना भी आसान नहीं है। वरीशा घुरा कर बोली थी, वरीशा सुल्तान थूकती भी नहीं है तुम्हारी पसंद नापसंद पर, आइंदा मुझे कॉल मत करना। अपनी तौहीन को बर्दाश्त करते इसने एक नया जुमला कहा, 2301। इसने उलझ कर पूछा, क्या मतलब? वो हंसते हुए बोला, इन 3 सालों में तुम इतनी दफा ये जुमला बोल चुकी हो कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। वो हैरान हुई थी, वो शख्स इसके लफ्ज भी गिनता था। क्या चाहते हो तुम? छोड़ दो मेरा पीछा, थक चुकी हूँ मैं। ना तुम सामने आती हो ना तुम पीछा छोड़ते हो। वो बोला, मैं सामने आ जाऊंगा अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो। वरीशा तड़क कर बोली, मैं कभी तुम्हारी शर्त नहीं मानूंगी, बताओ कितने पैसे लोगे तुम मेरा पीछा छोड़ने के? जवाब दो। हेलो, आर यू देयर? वरीशा ने फोन देखा तो वो कॉल काट चुका था। ताज्जुब है, पहले तो कभी बात अधूरी नहीं छोड़ी, आज इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही थी तो कॉल काट दी, तो है इस इंसान पर, जिंदगी अजाब बना दी है मेरी। वो मोबाइल उछालकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। इशाल किसके किए की सजा भुगत रही है? सुफियान की महरूमा फुप्पो के वादे में क्या राज पोशीदा है? वरीशा क्या इस खुफिया शख्स को देख पाएगी? अगली किस्त में जाने। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।